Students, welcome to Dwarka Mavir campus. I'm Azbiha, your English teacher. So, starting our day with the name of Almighty Allah. What's day today? Today date is 29th of January 2021. Day is Friday, and which subject we will learn today? English. And today we will do the introduction of letter P. Which letter? P. Okay, now take out your English reader. Take out page number 20. Yes. And what we have to do is we have to look and say, yes, which letter is this? P. P. P peaches. P peaches. P parrot. P parrot. P panda. P panda. P paint. P paint. P pineapple. P pineapple. P pigeon. P pigeon. Students, you will revise, you will repeat all these vocabs with your mother at your home. Okay, now take out your English notebook. Turn over the page and take out page number 2525. Oh wow, here's a story. Before reading the words of the story, we will write date, okay, and we will mark day. Yes, okay, we will not read a story, but we will read the words, okay, starting from letter P. Purperine, purperine. P Pakistan, P Pakistan. P painted, P painted. P pictures, P pictures. P paper, P paper. P parrot, P parrot. P pigeon, P pigeon. P peach, P peach. P pineapple, P pineapple. Okay, now come on this section. Here it is written, trace and write. And today we will learn the correct formation, that how we can write letter P on these 4 lines. Yes. Okay, now look here. Here, how many lines are there? There are 4 lines. 1, 2, 3 and 4. Now, starting from here, go down and down, come up and turn around. What it becomes? P. P. Look here again. Go down and down, come up and turn around. What it becomes? P. P. Okay, you will trace these lines and you will do these 2 lines more, and it's up to you. If you want to do this whole page, you can do, or if you want to do these 2 lines only, so you can do 2 lines only. Okay, now turn over the page, take out page number 26. Over here it is written, write at P. Okay, here it is date, so you will write date over here. And today we will learn that how we can write letters very nicely on these 4 lines. आप सबको फॉर्मेशन बहुत अच्छी सी आ गई है, और हमने अब इतने सारे लेटर्स कर लिए हैं कि हम एक दफ़ा रिवाइज़ करें, उसकी रीइंफोर्समेंट करें, तो हम आज इसको दोबारा से इन लाइंस पे देखेंगे. ठीक है, और आज हम सीखेंगे कि हम एक लेटर के बाद कितनी फिंगर गैप्स देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे लेटर ए है, ए के बाद हम कितनी फिंगर्स का गैप देंगे? 2, लाइक दिस, 2. और फिर हम एक लेटर लिखेंगे
आप लोग किस तरह से करते हैं ना कि एक लाइन दी हुई है और उसमें इतनी सारी लाइंस हैं और आपने पूरी पूरी एक ही लाइन में लिख दी। सो दैट इज़ रॉन्ग। बहुत सारे बच्चों ने पेपर्स में इसी तरह से किया है कि एक लेटर के बाद एक भी गैप नहीं दिया, तो उससे बहुत मैसी लग रहा था ना। तो अब हमें सीखना है कि हम अच्छे से नीट एंड टाइडी वर्क किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ए। आफ्टर राइटिंग ए I'll give 2 finger gap। और अगर आपने फर्स्ट लेटर के बाद 2 finger gap दिया है तो आप हर लेटर के बाद 2 finger gap देंगे। वो रॉन्ग हो जाएगा कि आपने इधर 2 fingers का गैप दिया है, फिर यहाँ आए आपने 3 दे दिया, फिर यहाँ 2 दे दिया, फिर 1 दे दिया। दैट विल बी रॉन्ग। ओके, और कोशिश कीजिएगा कि लेटर के बिल्कुल नीचे जो है लेटर आए, इधर उधर ना जाए। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक। ओके, नाउ आई हैव गिवन 2 finger gap। नाउ आई एम राइटिंग ब। Go down, come up and turn around. What it becomes? B. Now again I am giving 2 finger gaps and I am writing K. A curvy K. Now again I have given 2 finger gap. यहाँ पे तो डॉट नीचे है। नहीं, हम ड यहाँ से तो सेकंड लाइन से तो नहीं लिखते ना, हम तो फर्स्ट लाइन से लिखते हैं। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है। तो हम डॉट हम खुद ही से यहाँ बना लेंगे और हम ड लिख लेंगे। ओके, लाइक दिस। आप भी टीचर के साथ जो है ये पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, और आप लेटर्स जब लिख रहे होंगे तो यू हैव टू रिकॉल द फॉर्मेशंस। ओके, नाउ व्हाट कम्स आफ्टर ड? एह, एह, एह। लुक हियर, मैंने बिल्कुल ए के नीचे एह लिखा है। ओके, ओके, नाउ कंप्लीट दिस whole letters, then afterward we will revise and we will learn the correct sound, that how it comes out from our mouth. Okay students, I hope you all have done this work very neat and nicely. Okay, now let's see कि हम इसकी sounds किस तरह से निकालते हैं। Repeat with me. A, B, K, ड, एह। अब इसकी आवाज़ किस तरह से निकलेगी? आप जब एह बोलेंगे तो इस आपके मुंह से एक वार्म एयर निकलेगी, गर्म हवा निकलेगी। आप जब एह बोलें तो आप अपने हाथ अपने मुंह के आगे रखेगा तो आप फील करेंगे कि एक एयर हमारे हाथ को टच कर रही है। ये ए है, ये एह है, ये ए है, ये एह है। ओके, एंड व्हाट्स द साउंड ऑफ दिस लेटर? ओके, फ नहीं है। ओके, द लेटर साउंड इज। आप फील करेंगे अपनी जो आपके टीथ हैं वो नीचे वाले लिप्स को अंदर की तरफ प्रेशर से फील करेंगे और एक एयर निकलती हुई आपको फील होगी। ठीक है। ग, ह, ई, ज, क, ल। अब इसकी साउंड कैसे निकल रही है? आपकी जो टीथ हैं, आपके जो टंग है, आपके ऊपर वाले टीथ को पीछे से टच कर रही है। ओके, और हमने टीथ से हाइड किया हुआ है टंग को, हम उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो हम जब बोलेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके, इस तरह से। विच लेटर इज दिस? आप अपने दोनों लिप्स को
अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो साउंड निकलेगा और जब भी आप कोई यमी डिनर करते हैं या लंच करते हैं तो आप अपनी मम्मा को बोलते हैं ना तो इसकी साउंड भी बिल्कुल इसी तरह से है। ओके, नाउ कम टू दिस लेटर। जैसे है वैसे है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से टीथ को टच कर रही है और हमने जो है हाइड किया हुआ है, लेकिन हम को नोज से बोलेंगे। कहाँ से आवाज़ निकलेगी? हमारी नोज से। ओ में राउंड एंड राउंड है तो हमारे लिप्स भी बिल्कुल राउंड हो जाएंगे। आप लोग ये सारे लेटर मिरर के आगे खड़े होके बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। फ ओके, तो हम इसमें भी हल्की सी एयर बाहर आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू डू दिस, राइट द मिसिंग लेटर्स एज वेल। ओके, बट दिस इज़ चॉइस, अगर आपको करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।